Okay, yes, hello Prajwal, welcome on Europedia platform. Okay, so let's start your snap mock for refrigeration and air conditioning. And as you mentioned, you are preparing for engineering services examination. Yes, sir. So when is your interview, Prajwal? 14 December, sir. 15th December, fine. 14. So what do you know about refrigeration? What is refrigeration? Sir, refrigeration is basically is a process through which we maintain a given space at a lower temperature by extracting heat from it and rejecting the heat to upper temperature. Our main aim here is to maintain the space at lower temperature than that of surrounding. Prajwal, what do you understand by throttling? Throttling, sir, throttling is basically when the fluid flow through a constricted or restricted passage. It is throttling. It is called throttling. Basically, in throttling, sir, it is an isenthalpic process. It's an irreversible adiabatic process. Means in throttling, the enthalpy remains constant, sir, from one point to another point, sir. Achha, why temperature decreases when we carry out throttling? In VCRS, when we carry out throttling, temperature decreases. Yes, sir. Sir, minutes, sir. Yes, sir. Sir, 1 minute, sir. Sir, basically, sir, throttling is an irreversible adiabatic process. So we can write its entropy changes ds generation plus dq by t. Because sir, ds generation will always be positive, so heat rejection will be negative. So that's why the temperature is getting reduced. Heat rejection be negative. So ds generation system is rejecting heat, but the process is adiabatic. Sorry, sir. Throttling is an adiabatic process. Sir, it's an irreversible adiabatic process, sir. हाँ, तो adiabatic में तो heat transfer नहीं होगा. Yes, sir. Whether it is reversible adiabatic or irreversible adiabatic, there will be no heat transfer. Irreversible isentropic process. Irreversible isentropic process, sir. Means throttling is not adiabatic. Sir, throttling is adiabatic or not? First answer that, Prajwal. Sir, throttling is adiabatic, sir. Irreversible adiabatic process. Yes, good. बिल्कुल सही है. Yes, sir. तो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का तो जीरो होगा ना इन केस ऑफ थ्रोटलिंग प्रोसेस. सराउंडिंग का तो कोई एंट्रोपी चेंज होगा ही नहीं बिकॉज़ देयर इज नो हीट ट्रांसफर. Yes, sir. So sorry, sir. I'm not getting. सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ जाएगा. Yes, sir. DS. Yes, sir. सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा. Yes, sir. वो ठीक है. मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि एंट्रोपी बढ़ेगा घटेगा. मैंने आपसे पूछा टेम्परेचर क्यों घटेगा. थ्रोटलिंग जब हम करते हैं ना, on TS diagram if you show throttling in VCRS cycle, तो एंट्रोपी बढ़ता है, वहां पे टेम्परेचर घटता है, नहीं? Yes, sir. Yes, एंट्रोपी बढ़ता है. टेम्परेचर क्यों घटता है? सर ये इसका आइडिया भी नहीं लगता सर. अच्छा, what do you understand by 1 ton of refrigeration? So 1 tonnage basically implies कि सर अगर हम 1 ton of ice वाटर लें 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 1 ton of ice at 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करें विद इन 24 आवर्स, तो इसको हम 1 tonnage of ice कहते हैं, ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 ton of रेफ्रिजरेशन कहते हैं. और 1 ton of रेफ्रिजरेशन की सर वैल्यू होती है 3.5 किलोवाट. क्या प्रूव कर सकता हो हाउ वी कैन से 1 ton इक्वल टू 3.5 किलोवाट? यस सर, इसको मैथमेटिकली लाया जा सकता है. हाँ, करके दिखाओ.
सर इसको बेसिकली हम इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, पूरा डिराइव कर दूं कि सर आपको बता दूं? सर डिराइव कुछ बहुत ज्यादा डिराइव करना पड़ेगा, जस्ट नो शो मी। सर, बस ये करना है। हाँ सर एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा सर, जैसे सर हाँ 24 आवर्स में मान लीजिए सर हम क्यू डॉट रेट से हीट निकाल रहे हैं सर सिस्टम से, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा सिस्टम का वो 1 टन मतलब 1000 केजी, और लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 335 केजी होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 1000 इंटू 335। यस सर, ठीक है। 1000 इंटू सर 335, और सर इसको डिवाइड कर देंगे सर टाइम से, टाइम 24 आवर्स ले रहे हैं। हाँ, तो आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है इसको सोल्व करके? अराउंड सर 3.87 किलोवाट आ रहा है। 3.5 तो नहीं आ रहा है? यस सर, 3.5 नहीं आ रहा, एग्जैक्ट 3.5 नहीं आ रहा। तो फिर 3.8 क्यों नहीं बोल रहे इसको? तो इसके पीछे एक रीजन सर अभी क्लिक नहीं हो रहा। चलो, can you tell me the different cycles, refrigeration cycles available to us to produce refrigeration? यस सर, सर VCRS सर, वेपर बताओ कुछ। कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है सर, और सर एक VARS होती है, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। गुड। और सर एयरक्राफ्ट में जो होता है सर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो होती है सर, जूल कोलेबन साइकिल, बेल कोलेबन साइकिल सर। और ये तीन मेन, तो ये तीन पढ़ते हैं। अच्छा, आपने VCRS में sometime we carry out superheating and subcooling. यस सर। So can you explain what is the effect of subcooling and superheating on the performance of VCRS? यस सर, सर सब कूलिंग से सर COP इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और वर्क इनपुट तो सेम रहेगा। सब कूलिंग की बात करें सर, तो इससे COP इंक्रीज कर जाएगा। वाइल सर सुपर हीटिंग के केस में सर हमारा अगर हम इवेपोरेटर में करा रहे हैं सुपर हीटिंग, तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ W इन मींस वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर भी बढ़ेगा। तो हम ये कह नहीं सकते कि मतलब इट मे COP में इंक्रीज और डिक्रीज का केस हो जाएगा यहाँ पे सर सुपर हीटिंग में। अच्छा, वेंटिलेशन में और इनफिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है प्रज्वल? सर वेंटिलेशन में सर हम फ्रेश एयर अपने एयर कंडीशनिंग में सप्लाई करते हैं ताकि प्योरिटी ऑफ एयर मेंटेन रहे। और सर दूसरा क्या नाम दिया सर आपने? इनफिल्ट्रेशन, वेंटिलेशन, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में कुछ हम शायद मे बी सर हम कुछ जो अपना अमाउंट ऑफ एयर है वो जो रूम से होके एक्सट्रैक्ट हो रही है उसके साथ मिक्स करते हैं नई एयर। ये सर इसका आइडिया नहीं है सर इनफिल्ट्रेशन का। ठीक है। बायपास फैक्टर क्या होता है प्रज्वल? बाईपास फैक्टर सर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सर द अमाउंट ऑफ अनकॉन्टेक्टेड एयर व्हेन वी पास इट थ्रू अ कॉइल। तो कितना अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अनकॉन्टेक्टेड एयर रहेगा उसको हम बाईपास फैक्टर के थ्रू डिनोट करते हैं सर। तो हाउ यू विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ बायपास फैक्टर फॉर ए कूलिंग कॉइल? तो कूलिंग कॉइल है सर, लिख दूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मान लीजिए सर T1 टेम्परेचर की एयर आ रही थी और हमारा कॉइल का टेम्परेचर T3 मान लेते हैं, और जो आफ्टर मींस आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉइल जो हमारी जो एयर गई उसका टेम्परेचर T2 मान लेते हैं सर। तो जो अगर कूलिंग कॉइल के लिए सर लिख रहे हैं तो सर अगर कूलिंग कॉइल के लिए बात करें तो टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर माइनस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल अपॉन 1 मिनट सर उल्टा कर दिया मैंने। The temperature of incoming air minus temperature of outgoing air divided by temperature of incoming air minus temperature of cooling coil.
मींस कितना हमारा एग्जैक्ट पहुंचा और कितना हमारा पहुंच सकता था, इसका रेशियो होगा सर कूलिंग कॉइल के केस में। अच्छा आजकल एक बड़ा मार्केट में हॉट टॉपिक चल रहा है इन्वर्टर एसीज। तो यू आर अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इन्वर्टर एसीज? इन्वर्टर एयर कंडीशनर सुना आपने? वैसे नाम सुन रखा है, इसके बारे में पढ़ा नहीं। नाम सुना है आपने? यस सर। बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट इन्वर्टर एसी? यस सर, वर्किंग के बारे में नहीं पता। चलो ठीक है। आप ये बताएं कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं इन आवर एयर कंडीशनर? व्हिच रेफ्रिजरेंट वी यूज इन आवर एयर कंडीशनर? सर विंडो एसी में सर हम जैसे सर कार की एसी है उसमें हम R134A यूज करते हैं, और विंडो एसी है तो उसमें R22 यूज करते हैं, और सर स्प्लिट एसी के केस में R32 यूज करते हैं सर। अच्छा, आपने ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में सुना होगा? यस सर सुना। तो बताएं कुछ क्या होता है, हाउ वी मेजर ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट? ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल बेसिकली सर जब हम मेजर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि सर क्लोरीन ही बेसिकली ओजोन पे जाके ओजोन का डिप्लीशन मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्लोरीन एलिमेंट। तो जैसे सर R134A है, उसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल हम 0 लेते हैं क्योंकि उसमें क्लोरीन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो हम उसका रेफरेंस ओजोन R134A। ये सर उसमें क्लोरीन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ना सर, तो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 0 है, मतलब उसको रेफरेंस लेते हैं शायद सर, ऐसा पढ़ा है, उसको रेफरेंस लेते हैं और बाकी उसके कंपैरिजन में हम बाकियों को देखते हैं, बाकी रेफ्रिजरेंट्स का। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए रेफरेंस क्या लेते हैं? सर ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर रेफरेंस तो सर ग्लोबल वार्मिंग का नहीं पता सर, CO2 में भी सर अगर गैस मार सकते तो CO2 को लेते हैं क्योंकि CO2 सही है, CO2 रेफरेंस लेते हैं। आप बता सकते हो जो अमोनिया होता है उसका रेफ्रिजरेंट कोड क्या है? अमोनिया का सर R717। R7। कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं कुछ अमोनिया की, दैट्स हाउ वी यूज दिस इन आवर कोल्ड स्टोरेज प्लांट। तो बता सकते हो व्हाट आर दोज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया व्हिच मेक्स इट सुटेबल फॉर a cold storage plant? हाँ सर अमोनिया का सर बेसिकली जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है वो काफी हाई होता है, ये मेन इसका कारण है सर हम यूज करते हैं इतना। अच्छा, अमोनिया का सुपर हीटिंग करते हैं हम VCRS में? अमोनिया का सुपर हीटिंग आइडिया नहीं सर, वैसे अगर इसका मुझे ये पता है, उसका पीएच चार्ट मुझे पता है सर, कुछ ऐसे होता है, ऐसे देख सकते हैं अमोनिया का पीएच चार्ट, उसमें कैसे सही ऐसे कुछ आता है पीएच चार्ट। तो ये आपको अंदाजा है कि ये जो मैंने पढ़ा टाइप 2 टाइप 3 पढ़ा है आपने बनाया है? तो एक जगह से आइडिया था तो पढ़ा था ये कौन से होते हैं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3? इन 3 कैटेगरीज वी डिफाइन डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स। तो ये जो डोम कैसा मिलेगा आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में? टीएस पे अगर हम बात करें, टीएस पे डोम, इसका आइडिया नहीं सर, सॉरी सर। आप बताएं कि जो एडियाबैटिक इवोपरेटिव कूलिंग होती है, एडियाबैटिक इवोपरेटिव कूलिंग, कैन यू शो दैट प्रोसेस, एडियाबैटिक इवोपरेटिव कूलिंग प्रोसेस ऑन साइक्लोमेट्रिक चार्ट? दिखा सकते हो? एडियाबैटिक इवोपरेटिव कूलिंग, हाँ। एडियाबैटिक सैचुरेशन के बारे में सुना था, एडियाबैटिक इवोपरेटिव कूलिंग। हाँ, एडियाबैटिक सैचुरेशन क्या होता है सर? बेसिकली जब हम उसका कैसे करोगे एंड वाटर वेपर ऐड करके ही करोगे ना? यस सर। हाँ, उस टाइम पे कूलिंग होगी, वो वही है जो आप सोच रहे हो, एडियाबैटिक सैचुरेशन, एडियाबैटिक इवोपरेटिव कूलिंग। तो कैसे शो करोगे उसको आप?
साइक्लोमेट्रिक चार्ट पे। एरो इधर इधर साइड। हाँ ठीक है। तो इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम्म। यस बढ़ रहा है, तो अप्रोच कर ये रहा जो है लाइन 100 आपने बताई, ये लाइन में जो डब्ल्यूबीटी लाइन होती है, कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइन, कांस्टेंट कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइन से। डब्ल्यूबीटी लाइन में और एंथैल्पी लाइन में इज देयर इज एनी डिफरेंस या बोथ आर सेम? सर मतलब सर दोनों सेम ही होती है, लेकिन कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइन सर सर मतलब कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन सर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहती हैं, और कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइन वैसे स्पेसिंग उनकी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन दोनों कांस्टेंट, जैसे अगर कांस्टेंट एंथैल्पी और कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी दोनों एक ही लाइन पे शो कर सकते हैं, मतलब ये दोनों शो का कर इंक्लिनेशन सकते हैं, करते हैं? करते हैं सर, मतलब वही करते हैं, करते इंक्लिनेशन हैं, सेम रहता है। हाँ यस सर। करते हैं जस्ट टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी, है ना? कर यस सर। सकते हैं वो ठीक नहीं है, कर नहीं सकते, बिकॉज दैट इज यस सर। गोइंग टू प्रोड्यूस सम एरर इन द यस कैलकुलेशन। सर। करते हैं क्योंकि जब हम, अगर आपके पास मान लीजिए सपोज यू आर हैविंग लार्ज साइक्लोमेट्रिक चार्ट, आपके पास कोई बड़ा पेपर पे चार्ट अवेलेबल है, देन इट इज गुड टू शो देम सेपरेटली। But suppose you are having a A4 size paper and you are printing some, psychrometric chart on that, then just to avoid the complexity, it is good to take them as a single line only, WBT or a constant enthalpy line. अच्छा, आप ये बताएं कि आपने एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो सुना होगा, जब भी हम मार्केट में जाते हैं ना फॉर परचेसिंग एनी रेफ्रिजरेटर, तो वो एक नंबर आपको डिफाइन करते हैं, सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। एनर्जी आपने परफॉर्मेंस सुना होगा रेशियो के बारे में। SEER, लिखा होता है रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी, एयर कंडीशनर के ऊपर भी SEER। व्हाट इज दैट SEER? एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो सर सुना है, एनर्जी वो होता है सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। क्या होता है, कुछ अंदाजा है सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे प्रज्वल, आप बताएं कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में क्या डिफरेंस है? थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल सर दोनों बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप एक्सपेंशन डिवाइस है, और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व में सर हम कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हैं, और थर्मोस्टैटिक में सर हम कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपरहीट मेंटेन करते हैं सर बेसिकली डिफरेंस है। अच्छा, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें हम कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं, व्हाई नॉट ऑटोमेटिक एक्सपेंशन या अदर काइंड ऑफ एक्सपेंशन वाल्व? कैपिलरी ट्यूब सर उसकी साइज थोड़ी स्मॉल होती है शायद इसलिए, क्योंकि उसमें एरिया कांस्टेंट रहता है, तो आराम मतलब साइज थोड़ी स्मॉल है, और सर आराम वो इंथैल्पी ड्रॉप आराम अच्छे से मिल जाता है उसमें इन कंपैरिजन टू अदर टू। चलो ठीक है प्रज्वल, अभी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ, हाँ? देखो, आपसे मेरा पहले भी शायद इंटरेक्शन रहा है, आपने एक स्नैप लगाया था, तो डिलीवरी तो आपका ठीक है, यू आर लुकिंग सिंसियर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस भी ठीक था आज आपका, मेरे ख्याल से पहले फर्स्ट टाइम से बेटर था। इंटरव्यूअर कई बार क्या करता है, वो ना बेसिक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनसे अलग, कई बार जो मार्केट में जो एक लोगों का एक क्यूरियोसिटी रहती है समथिंग, है ना, कि ये टावर एसीज क्या होते हैं, टावर एसी होते हैं ना बैंक वगैरह में, ये जो हमारा इन्वर्टर एसीज क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, गाड़ी में कैसे हम कूलिंग करते हैं। तो कई बार जब आप इस तरह के सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो ना, तो थोड़ा सा अवेयरनेस आपको रखना है इस चीज के बारे में, ठीक है? मैंने आपसे पूछा था कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बताओ, आपने बताया तो ठीक उसको, बट वहां पे जो 1 टन होता है ना, दैट 1 टन इज 1 US टन। ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय एशरे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स। तो यूएस टन में 908 केजी होते हैं प्रज्वल, मीट्रिक टन में 1000 केजी होते हैं, बट जो यूएस टन है विच इज नोन एज शोर टर्न इन इंटरनेशनल मार्केट, उसमें 908 केजी होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अमोनिया का हम सुपर हीटिंग नहीं करते, अगर अमोनिया का सुपर हीटिंग करोगे ना तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। तो जो सुपर हीटिंग से सीओपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द रेफ्रिजरेंट। सो इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली कि अगर आप फेरोन के लिए आर जो आपका जो आपका फेरोन सीरीज में हम बात करें, R11 है, R12 है,
तो इनके जब आप क्या करते हो, सुपर हीटिंग करते हो, तो परफॉर्मेंस बढ़ता है, सीओपी बढ़ता है। बट अगर आप अमोनिया का अगर आप सुपर हीटिंग करते हो तो परफॉर्मेंस सीओपी घटता है। दैट्स व्हाई वी डोंट कैरी आउट सुपर हीटिंग फॉर अमोनिया। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है लीकेज, जो एयर अंदर लीक कर जाती है ना, बाहर की एयर, अच्छा अच्छा। खिड़कियों के जो क्रैक्स हैं या होल्स हैं, जो विंडो के नीचे का जो स्पेस है, जो यस सर। जो बाहर से लीकेज हो रही है एयर का इनसाइड द रूम, बिकॉज आउटसाइड टेम्परेचर इज हायर, इनसाइड टेम्परेचर इज लोअर, उसे हम क्या बोलते हैं, अच्छा इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन तो हम नहीं चाहते, दैट इज एडिशनल लोड ऑन द सिस्टम। ठीक है, अच्छा। बार बार आप दरवाजा खोल रहे हो ना, तो जो बाहर से हवा आ जा रहा है, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। वेंटिलेशन क्या है, जो हमें चाहिए, है ना। यस सर। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में तो हम 100% वेंटिलेशन करते हैं, हम एयर को यस रिसर्कुलेट करते नहीं है। तो वेंटिलेशन क्या है, जो फ्रेश एयर अंदर, जो आप ऑक्सीजन लेवल वगैरह मेंटेन करने के लिए हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फ्रेश एयर यू आर प्रोवाइडिंग, दैट इज वेंटिलेशन। देखो आपने एक चीज सुनी होगी, थ्रोटलिंग जो होता है ना वीसीआरएस में, वो थ्रोटलिंग एसोसिएटेड विद फ्लैशिंग होता है। स्मॉल पार्ट ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, जब लिक्विड का प्रेशर ड्रॉप होगा, बिकॉज थ्रोटलिंग इज एक्सपेंशन प्रोसेस, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा तो स्मॉल लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर। थोड़ा सा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, एंड इट विल टेक द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कहां से, फ्रॉम इट्स नेबरिंग पार्टिकल। तो जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा फ्रॉम इट्स नेबरिंग पार्टिकल, तो एक तो थोड़ा सा तो अपने को वेपर मिल जाएगा, बट द रिमेनिंग लिक्विड विल बी एट ए वेरी लोअर टेम्परेचर। फिर हमें फ्लैश चैम्बर लगा के क्या करना पड़ता है, फ्लैश चैम्बर लगा के जो वेपर बन गया उसको अलग करते हैं, बाईपास कर देते हैं सीधा कंप्रेसर में, और जो लिक्विड मिल अच्छा। गया लो टेम्परेचर, उसको हम कहाँ भेजते हैं, इवापोरेटर। इन्वर्टर एसी आजकल टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसा सिस्टम यूज करते हैं कि आपका जो मोटर है ना वो चलता रहता है, जो आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलता रहता है। आपको अगर सर चलेगा तो फिर पावर कम 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 कैसे कंज्यूम करेगा। होता क्या था, जो हमारे कन्वेंशनल एसी थे वो क्या करते थे, दे दे स्टार्ट इनिशियली, दे मेंटेन सम लोअर टेम्परेचर एंड देन दे ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। तो उनका जो ऑपरेशन है वो बड़ा क्या रहता है, स्टार्ट होंगे फिर बंद होंगे, और जब भी कोई मोटर रेस्ट से शुरू होगी ना, इट इज गोइंग टू कंज्यूम ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई मोटर कंटिन्यूसली चल रही है तो वहां पे उसका जो पावर रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी लेसर। तो इन्वर्टर एसी इट इज ऑब्जर्व्ड कि दे आर कंज्यूमिंग लेसर पावर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल एसी, बिकॉज वो हमेशा क्या करते हैं, चलते रहते हैं। स्पीड वेरी करता है, इनिशियली जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो मोटर का स्पीड ज्यादा होगा, जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो क्या होगा, योर कंप्रेसर विल रन एट ए लोअर स्पीड। वहां पे ऐसा स्पीड कंट्रोल नहीं होता, वो क्या होगा, ये तो शुरू हो जाएगा टेम्परेचर मेंटेन करेगा, फिर टर्न ऑफ हो जाएगा। अर्गेटिंग। अच्छा। तो इससे हमारी ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो कम हो जाता है इन्वर्टर एसी से, है ना। एक और चीज है, अपने को कंफर्ट भी क्या मिलता है, बेटर मिलता है, क्योंकि रूम के अंदर टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, क्योंकि आपका कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। आपने 21 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया, इट इज वर्किंग कंटिन्यूसली टू मेंटेन दैट 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बट कन्वेंशनल एसी में क्या होगा, आपने 21 पे मेंटेन किया रूम, जैसे 21 मेंटेन हुआ आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, फिर रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 22 23 24 25, जैसे ही 25 पे जाएगा कंप्रेसर शुरू हो जाएगा, फिर वो दोबारा से 21 मेंटेन करेगा। तो आपके जो रूम का टेम्परेचर है ना वो वेरी करता रहेगा 21 से 25 के बीच में, कुछ ऐसा। बट इन्वेंटर एसी में क्या करेगा, आपको एक कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर मिलने वाला है, तो कंफर्ट कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाती है, रनिंग कॉस्ट भी क्या हो जाता है आपका, बेटर हो जाता है। ये थोड़ा देखना आप, ओडीपी जीडब्ल्यूपी, ये मैंने आपसे जो पूछा था ना, ये थोड़ा देखना आप। सीजनल जो आपके रेफ्रिजरेटर्स है ना, उनका परफॉर्मेंस टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है, आउटसाइड टेम्परेचर पे। आपको पता है जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो विंटर में बहुत अच्छा सीओपी देता है एज कम्पेयर टू समर। तो हम सीओपी को कभी भी एक एक दिन पे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आपने आज सीओपी मेजर कर लिया कि दिस इज द सीओपी ऑफ द सिस्टम, बिकॉज दैट इज फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ऑल्सो। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, दे डिफाइन सम एवरेज सीओपी ऑफ ए पर्टिकुलर सीजन, उसको बोलते हैं सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। आप क्या करते हो, आप डेली सीओपी, मान लीजिए इंडस्ट्री में है, आपने एक रेफ्रिजरेटर बनाया, तो आप क्या करोगे, ऑन द एंटायर इन ए पर्टिकुलर सीजन, लाइक यू स्टार्टेड फ्रॉम सपोज जनवरी, तो जनवरी से लेके या चलो समर की बात करते हैं, तो समर नॉर्मली शुरू होता है मान लीजिए अप्रैल में, तो अप्रैल से लेके आपने सितंबर तक आपने क्या किया, इस पूरे सीजन में आपने सीओपी मेजर किया, उसका जो एवरेज सीओपी आ रहा है, दैट यू आर गोइंग टू मार्क ऑन दैट एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर, उसे हम बोलते हैं सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इज वेरी सिमिलर टू सीओपी, उसमें डिफरेंस नहीं है। चलिए ओवरऑल ठीक रहा प्रज्वल, ये जो चीजें बताई उसको आप वर्कआउट करो, बाकी सब ओके है, अच्छा है आपका नॉलेज।
बट इसको एक्सप्लोर करके रखो बाकी